हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस क्लासेस। आज हम प्लस टू में जो हमारा बोर्ड के लिए प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस which are important according to the board new sample paper sent by the CBSE board. So on that pattern, similar questions which are the important expected to come in the board exam 2026 we are discussing. In this session, this is today fifth lecture, 4 lecture over. In that 4 lectures, chapter 1 over, chapter 2 over, chapter 3 and 4 also 1 or 2 video done, and now today is the last on the chapter 3 and 4. Then next chapter 5, 6 we have to do, and continuous up to end we have to complete before the board exam. This session also. Okay, important expected question, short question. We can say most expected. Okay, now this question according to the new pattern, new syllabus. Okay, now this question, if 1 2 3 4 3 1 2 5 is equal to 7 11 k 23. So these are the two matrices. Product is this 2 by 2 2 by 2 and result also will be 2 by 2. Okay, now we have to find value of k. How? Product rule. First row with first column first element, first row with first column first element. You can check 1 3 ja 3, 2 2 ja 4, 4 plus 3 7. Correct? So no need to check, only direct k we have to take. Second row with first column, this element will be there k. So second row with first column, direct answer. So k is equal to, ठीक है बेटा, second row with first column. So 3 3 ja 9. Second row with first column, corresponding element product sum. 3 3 ja 9 plus 4 2 ja 8. 9 plus 8, 17. Answer. Okay beta, direct 1 marks questions. Okay, now next question we can do. Yes beta. Now next question continues. Second important, write these questions for this year. Write the number of all possible matrices. Write the number of all possible matrices of order 2 by 2. 2 by 2 order की सारी कितनी पॉसिबल हो सकती है ऐसी मैट्रिक्स कितनी है, वो नंबर लिखना. हाउ मनी with each entry, this is important understanding, with each entry 1 2 और 3. इसका मीनिंग क्या है कि 3 एलिमेंट है, 1 है, 2 है या 3 है, तो ये रिपीट भी हो सकते हैं. ऑल 3 एंट्रीज, दिस और दिस और दिस, तो रिपीट भी हो सकते हैं. रिपीटेशन अलाउड. मेन थिंग दिस पॉसिबल मैट्रिसेस ऑल पॉसिबल कह रहे हैं, तो 3 3 3 3 ये भी चारों एंट्री हो सकते हैं. 1 1 1 1 2 मिक्स हो गए, ये ऑल दैट. ओके, तो हाउ मेनी दैट with the help of permutation. This is the important solution. With the help of permutation, how many total matrices with 4 entry, 4 with 2 by 2 matrices यानी 4 एंट्री है और कितने 3 एलिमेंट यूज होने. तो इसका मतलब 4 प्लेस. एक मैट्रिक्स को बनाने के लिए कितने प्लेस है 2 by 2 में 4. 2 by 2 मैट्रिक्स 4 एलिमेंट, तो मीन्स 4 प्लेस. परमुटेशन एंड रिपीटेशन अलाउ. तो इसको फिल करने के लिए कितने वे हैं, कोई सा भी तीनों में से आ सकता है और आगे भी जा सकता है. वो रिपीटेशन अलाउ है. तो ये 3 3 3, तो क्या बन गया 3 पावर 4. तो 3 पावर 1 2 3 4. देन दिस इंप्लाइज 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81. तो ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस कितनी 81 आंसर. तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस 81. डन लाइक दिस, यानी परमुटेशन.
Clear? Okay. Hello. Next question, beta. Also very important. Like this also, a matrix A of order 3/3. कोई मैट्रिक्स A है, वो 3/3 ऑर्डर की है, मैट्रिक्स है वो, सच दैट डिटरमिनेंट A 4 और उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 4 है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 2A. अब डिटरमिनेंट 2A ध्यान देंगे, क्या लिख सकते हैं हम डिटरमिनेंट 2A को? इसको लिख सकते हैं हम, आराम से ध्यान देखने की बात है. A हमारा मैट्रिक्स है, तो 2 तो हमारा ये है यहाँ पर, और 2 सभी जगह जाएगा, तो 2 पावर n, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड इनटू डिटरमिनेंट A. ये फॉर्मूला ध्यान रखना है. क्या है ये फॉर्मूला, कौन सा है, ध्यान देने की बात है. जो ये नंबर है यहाँ, नंबर A के मल्टीप्लायर, ये कितनी बार आया, जितना ये कितनी रो है कितने कॉलम है, तो वो 3 बार मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 2 कॉमन आएगा, फर्स्ट रो में से 2 कॉमन, सेकंड रो में से 2, थर्ड में से 2 पावर n. तो ये फॉर्मूला है हमारा 2 पावर n. ओके, तो इसको हम कह सकते हैं क्या जनरली, कि k एंड इनटू A डिटरमिनेंट की वैल्यू इफ A इज n बाई n स्क्वायर मैट्रिक्स, देन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो k की मल्टीप्लाई हो जाती है उतनी बार जितनी वो 3/3 की n ऑर्डर है, इनटू डिटरमिनेंट A. ये फॉर्मूला याद रखना है. ओके, बिकॉज दिस, तो दिस देन कैलकुलेट 2 पावर n. n कितना है यहाँ, n इज 3, तो 2 पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट A 4 इंटू 4, तो कितना हुआ 2 पावर 3 8 into 4. Then how many value? 32. Important for 1 marks. 32 answer. ओके, k पावर n ध्यान रखना. अगर मैट्रिक्स दिया है फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल है, तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में यही डिफरेंस है, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स में यही डिफरेंस है. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. गिवन एनी A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 2 - 3 - 4 7 2/2 भी. कंप्यूट A इनवर्स, A इनवर्स फाइंड करो एंड शो दैट 2 A इनवर्स इज इक्वल टू 9i - A. तो देखो हम जानते हैं कि A इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला है. क्या है A इनवर्स का फॉर्मूला? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A into adjoint of A, adjoint of A. अब adjoint of A मैट्रिक्स का फॉर्मूला है, क्या है adjoint का? अब आपको निकालना है adjoint, adjoint of मैट्रिक्स A. ये होता है क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब Aij, ओके, कोफैक्टर मैट्रिक्स. दिस ट्रांसपोज Aij मीन्स कोफैक्टर्स. तो कोफैक्टर्स निकालिए A11, क्या बनेगा A11, इसका कोफैक्टर ऑफ 2, दिस कैंसिल 7. ओके, कोफैक्टर ऑफ -3. अब ध्यान दें कोफैक्टर की वजह से ही वो नेगेटिव सेकंड के लिए, तो देखो रो एंड कॉलम कैंसिल, -4 इंटू माइनस, तो देन +4. बी केयरफुल, सेकंड एलिमेंट. ओके, ith jth सम ओड है जहां पर, तो ये है A12 और ये A21 एलिमेंट, इसमें भी ऐसे होगा. -4 का कोफैक्टर, कोफैक्टर -4, दिस रो एंड कॉलम कैंसिल, दिस इज -3 एंड माइनस से मल्टीप्लाई, तो +3. ओके, एंड देन कोफैक्टर ऑफ 7, दिस इज 2 A22, दिस कैंसिल ओनली 2. तो नाउ ट्रांसपोज ऑफ दिस, ट्रांसपोज मीन्स रो का कॉलम, कॉलम का रो, फर्स्ट रो एज फर्स्ट कॉलम, तो 7 4 फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एज सेकंड कॉलम 3 2. दिस इज द एडजॉइंट ऑफ A.
Okay, this adjoint A solution put here. So A inverse is equal to adjoint of A matrix. Adjoint of A matrix. This is 7 3 4 2. This and divide by determinant of A. Determinant of A solve करो. What is determinant A? Determinant of A also we have to find. So this 2 into cofactor of this. So 2 into cofactor of this 7 plus minus 3 into cofactor. Minus 3 into cofactor of minus 3 4 plus done. Along first row I have done. Okay, along first row expand it. 2 into cofactor of this and minus 3 into cofactor of minus 3 is plus 4. Then this 2 7 is 14 and minus 4 3 is 12. Then 2. This is your determinant A. Then this will be equal to determinant of divide by 2 each element. So 7 upon 2, 3 upon 2, 4 upon 2 means 2, 4 upon 2 solve करके 2, 2 upon 2 1. ये आपका फाइनल आंसर हो गया A इनवर्स. ओके, नाउ प्रूव दैट ट्वाइस LHS लिया हमने ट्वाइस ऑफ A इनवर्स. अब ट्वाइस ऑफ A इनवर्स 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? दिस इज ऑफ 7 3 2 7. ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया तो सारे एलिमेंट पे होगा तो ये बन जाएगा 7 3 4 2. ये LHS है. इसको सॉल्व किया तो 9i माइनस ए. अब ये इसको यहीं छोड़ दिया आपने. ओके, अब आपने RHS फाइंड कर लिया. RHS लिया हमने 9i मीन्स you know very well. 9i मीन्स 9 0 0 9. 2 by 2 की है हमारे पास, है ना A. तो दिस माइनस A हमारे पास कितना है? 2 minus 3 minus 4 7. 2 minus 3 minus 4 7. ओके, नाउ सिंप्लीफाई. क्या बना? 9 minus 2 7. सब्ट्रैक्ट दिस and 0 minus minus 3 and plus 3. 0 minus minus 4 then 4. 9 minus 7 then 2. So this is your number 2. RHS and LHS both are equal. So LHS equal RHS इक्वल कितना आया? दोनों 7 3 4 2. LHS भी यही है, RHS भी यही है. हैंस प्रूव्ड. ओके, क्लियर? हैंस प्रूव्ड. डन. Okay, similarly next question, important. Yes beta, hello. Next question, question 6, very important, last long answer question. Okay, in 5 marks. That A is equal to 3 by 3 matrix है. 1 2 0 minus 2 minus 1 minus 2 0 minus 1 1. Find A inverse and using it
solve the system of linear equation x minus 2y equal to 10, 2x minus y minus z equal to 8, minus 2y plus z is equal to 7. So be careful about that question. This important thing कि here first A inverse we have to find. तो A inverse के लिए हमने इसको कोफैक्टर लेने, ठीक है, तो हम डायरेक्ट कहेंगे क्या, पहले हम एडजॉइंट A ले लें, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ A कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, वी नो कोफैक्टर मैट्रिक्स Aij, ओके, और ये 3/3 की है, ओके, एंड इसका ट्रांसपोज ऑफ दिस, देन कोफैक्टर मैट्रिक्स वी हैव टू राइट डायरेक्ट कोफैक्टर ऑफ 1. बी केयरफुल, रो एंड कॉलम कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 बन जाओ -1 एंड माइनस प्लस एंड देन -3 टाइम माइनस है, 2 बन जा 2, तो -2, तो ये हो गया -1 -2 देन -3, फर्स्ट एलिमेंट बन गया आपका कोफैक्टर, ठीक है, ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1 दिस. नाउ कोफैक्टर ऑफ 2, कॉलम एंड रो कैंसिल, कॉलम एंड रो कैंसिल एंड -2 बन जा -2 एंड दिस इज 0, तो -2 0, दिस -2 एंड माइनस से मल्टीप्लाई, बिकॉज सेकंड का कोफैक्टर है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो देन दिस इज +2, ओके, देन आफ्टर दैट 0 का कोफैक्टर, दिस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 बन जा 2 +2 एंड देन 0 +2, तो थर्ड है देन +2 एज इट इज. नाउ कोफैक्टर ऑफ -2, इट इज A12, it is also negative will come, then here this row and column cancel, 2 1 ja 2 and -0, so 2 and then -2, okay, then cofactor of -1, cofactor of -1, be careful, along row and column cancel, जिस एलिमेंट का है ये और ये कैंसिल, 1 1 जा 1 and -0 0 जा 0, तो 1 -0 1 1, it is 1. Then again this is the A second row third column, A2 3, so 2 + 3 5. If sum of I j is odd then माइनस से मल्टीप्लाई होती है लास्ट में, ठीक है, तो -2 का कोफैक्टर, this cancel, then 1 1 जा 1 -1 and 2 0 जा 0, तो -1 and multiply -1 then +1. Be careful. After that कोफैक्टर ऑफ -2 हो गया, अब कोफैक्टर ऑफ एक बार कैंसिल, तो 1 1 जा 1 -1 था, ओके, कोफैक्टर ऑफ 0, देन रो एंड कॉलम कैंसिल, 2 1 जा 2, रो एंड कॉलम कैंसिल, ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, 0 का दिस एंड दिस कैंसिल, इनका होना है, तो 2 2 जा 4, -4 एंड -0 +0, तो -4 एंड ये एलिमेंट कौन सा है, -4, ये है 3 1, तो -4 ही रहेगा, ठीक है, ये 3 2 है, ये इसका चेंज होगा माइनस साइन, तो -1 के अलोंग कॉलम एंड रो कैंसिल, रो एंड कॉलम कैंसिल, 1 2 जा 2, -2 एंड 0, तो -2 देन माइनस से मल्टीप्लाई देन +2, देन इसका कोफैक्टर ऑफ 1, दिस कैंसिल, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 -1 एंड माइनस +2 2 जा 4, तो -1 एंड +4, ठीक है बेटा, +4 एंड -1, तो +3 एंड +3 मीन्स +3 एज इट इज, ओके, इट इज द A33, then okay as it is. Again you check, this cancel, 1 1 ja 1, -1 and minus +2 to ja 4, -1 +4, then +3. This is your adjoint of A, ठीक है, and determinant of A also we should find to find the inverse, okay. Then determinant of A, कोफैक्टर जो है ये कोफैक्टर है हमारे, ठीक है, कोफैक्टर को एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 × 1 -3, डायरेक्ट आई एम राइटिंग -3 × 1, ओके, एंड 2 × 2, ठीक है बेटा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्लियर, +4, it should be clear, expand, ठीक है, you know, and 0 कोफैक्टर into element, कोफैक्टर 2 element 0, then 0,
then this is equal to 1. So this is your determinant. So A inverse of this is equal to, A इनवर्स कितना हो गया इसका? अब फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. ओके, एडजॉइंट ऑफ A, देन दिस एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास है, एडजॉइंट है दिस एंड डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट A इज 1. ओके, देन 1 से डिवाइड किया एज इट इज, -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3. This is the answer, A inverse. Okay, अब after that what saying? Yes beta, this A inverse into B is equal to X, this formula. तो A inverse हमारे पास है, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, तो इनका इनवर्स यही डायरेक्ट यूज करेंगे. क्यों यूज करेंगे? क्योंकि वो एक्सपेंड कर रहे हैं हम, एनी वन रो और एनी कॉलम चाहिए, तो इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम बन रहा है, तो देन ए इनवर्स एज इट इज रहेगा. तो ए इनवर्स हमारा और बी हमारा क्या होगा? 10 8 7. तो बी हमारा क्या हो गया? बी लिख लें कॉलम में, ये जो कांस्टेंट है इनकी मैट्रिक्स होता है, कांस्टेंट है 10 फिर 8 7. ओके, ये आपका हो गया. तो अब हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू, इक्वेशन सॉल्व करना है, तो ये a इनवर्स एज इट इज इनटू जो है हमारा मैट्रिक्स B. तो ये हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा a इनवर्स है हमारे पास -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3. ये हमारा A इनवर्स है, इनटू B हमारे पास है 10 8 7. ओके, क्लियर? नाउ दिस मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम. तो क्या आएगा? फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, corresponding element multiply sum. तो -3 10 जा -30 and 2 8 जा 16 plus 16 and 2 7 जा 14 plus 14. ये फर्स्ट एलिमेंट बन गया. सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, तो -2 10 जा -20 and 1 8 जा 8 plus 8 and 1 7 ja 7. Okay, and then third row with first column, first element that of the this, then -4 into 10 -40, 2 into 8 16 plus 16, 3 into 7 21. देन सॉल्व किया, क्या बन गया? ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्रोडक्ट सम हो गया, ठीक. तो अलजेब्रिक सम 14 and 16 30 and -30, then 0, then 8 plus 7 15, positive negative 20, so -5, and then 21 and 16 37 and ये माइनस के 40 प्लस के 37, तो मीन्स -3. कंपेयर किया, x क्या होता है हमारा? XYZ. तो XYZ x मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना? रिजल्ट आ गया 0 -5 -3. ओके, देन दिस इंप्लाइज corresponding element must be equal, equating these two matrix. तो x is equal to 0, x is equal to 0, y is equal to -5 and z is equal to -3. Answer.
क्लियर, बी केयरफुल दैट, क्या उस पर यूनिवर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि वो रो को कॉलम कर दिया तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोज और ए का मैट्रिक्स का या ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है वो सेम आती है। एक्सपेंड करोगे एनी वन रो या एनी वन कॉलम सेम आता है, इसलिए यहाँ जो फर्स्ट रो है वो एज फर्स्ट कॉलम है वहां, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ए इनवर्स में, तो ए इनवर्स वही यूज होगा। ओके, clear? Okay, now this like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact, और उन पेरेंट्स को जरूर शेयर करें जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, बिकॉज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 10th का भी 11th का भी 12th का भी तीनों लिंक भेजता हूं, तो जिस वीडियो में आपको देखना होगा, जो भी 10th का देखना है या 11th का स्टूडेंट्स है, तो उसको उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको वीडियो देख सकते हैं। तो उनको गाइड करना है, बस वो सब्सक्राइब पहले कर दें, जैसे वीडियो खोलेंगे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके फिर वॉच करें, फिर आपने जो वॉच करना होगा उसके डिस्क्रिप्शन में जाएं और वो एक लिंक मिलेगा, 10th क्लास का लिंक 10th क्लास की वीडियो के लिए, 11th का लिंक 11th क्लास की वीडियो के लिए, एंड 12th का लिंक 12th की वीडियो के लिए। सारा सिलेबस फुल एनसीईआरटी फुल सिलेबस यू मे वॉच, पूरा सिलेबस देख सकते हैं, कोई कंसेप्ट कैसे है, कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, उसका क्या सॉल्यूशन है, और विद प्रूफ ऑफ एवरी फॉर्मूला एवरी कंसेप्ट विद प्रूफ दिया हर एक का, तो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, एंड उनको शेयर जरूर करें जो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है +2 के लिए, तो इसमें +2 के स्टूडेंट्स को तो खैर शेयर करना ही करना है। ओके, क्लियर, एंड उसको जरूर भेजें जो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं। मेरी ये इच्छा है कि वो जो ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं वो भी वीडियो को देखें और उनको बेनिफिट हो। ओके, यू गाइड देम, उनको के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।